DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں طلباء و طالبات سے خصوصی نشست۔ ترجمان پاک فوج نے بھارت کے آپریشن سندور کو ناکام بنانے اور مارکہ حق میں پاک فوج کی شاندار فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ DGISPR نے مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، حب الوطنی اور شعور کو سراہا۔ گورنمنٹ کالج کی نشست میں طلباء و طالبات نے قومی اور معاشرتی امور، سیکیورٹی کی موضوعات پر کھل کر سوالات کیے۔ نشست کے اختتام پر GC یونیورسٹی کے طلباء نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء نے نشست کو خوش آئند قرار دیا، مستقبل میں بھی ایسی تقریبات کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد پر وفاقی وزیر کا استقبال۔ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا وفاق اور بلوچستان کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے اور بحالی امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق۔ بھارتی سرپرستی سے فتنہ الخارج کے ہاتھ ڈرون حملوں تک پہنچ چکے۔ فتنہ الخارج کی جانب سے ڈرون حملے کی ویڈیو جاری۔ خارج کے ڈرون حملوں کا نشانہ معصوم بچے اور شہری، جبکہ الزام پاک فوج پر لگا دیا جاتا ہے۔ فتنہ الخارج کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی کا واضح ثبوت ہے۔ ضم شدہ ضلع میں فتنہ الخارج کے ڈرون مارٹر حملوں کا نشانہ معصوم پختون عوام ہے۔ بھارت کے خطے میں بالادستی کی کوششیں دفن کر دیں۔ بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہے۔ امریکہ نیوٹرل مقام پر بھارت سے مذاکرات کا وعدہ پورا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ کہا خطہ دشمنی سے نہیں، تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں، بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے۔ ماضی کی طرح ایک بار پھر امریکہ اور چین میں پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ چترال کے دروش نالے میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ کلدام نالے میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ۔ دیر چترال شاہراہ مکمل طور پر بند۔ سینکڑوں مسافر دونوں اطراف پھنس کر رہ گئے۔ سیلابی ریلے سے آبپاشی اور ابنوشی نظام تباہ۔ نالے کے کنارے بنے ہیڈ ورک سیلاب میں بہہ گئے۔ زرعی زمینوں اور پینے کے پانی کی فراہمی متاثر۔ ٹریفک کی روانی معطل۔ مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ گلگت میں وقفے سے بارش جاری۔ NDMA کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 تک پہنچ گئی۔ سپیل ویز آج 2 بجے کھولے جائیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط۔ سیلاب سے متاثرہ چکوال، جہلم اور حافظ آباد کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا گیا کہ سیلاب سے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا۔ رابطہ پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ عوامی خدمت میں ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا چیلنج۔ کہا سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ چاہے موٹر وے بنا لو، لیکن چھت فراہم کرنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حیدرآباد میں سیلاب متاثرین میں مالکانہ حقوق تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا کہ نیپال میں زلزلہ متاثرین کے لیے 8 لاکھ گھر بنائے گئے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والا 3.5 سال میں ایک پروجیکٹ نہ بنا سکا۔ PTI کارکنان کی پاپو ایکٹ کے تحت 6 ماہ سزا کا معاملہ۔ PTI کارکنان کی مقدمہ نمبر 976 اور 977 میں ضمانتیں منظور۔ عدالت نے 20 ہزار روپے مشلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ PTI ورکرز پر تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔
खुजदार में 3 MH शाहराह सोरगुज के मकाम पर नामालूम अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक तीनों मकतूलीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशों को खुजदार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का 17वां यौम पैदाइश। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर तखरीब और तकसीम का खौफनाक बाब हमेशा के लिए बंद किया। जुर्म बेगुनाही में अजियत और असीरी को हंसकर बर्दाश्त किया। साजिशों इल्जामात का सामना किया लेकिन मुखालिफिन से बदला नहीं लिया। सदारती इख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल करना, CPAC, सूबाई खुद मुख्तारी, NFC, 18वीं तरमीम, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आसिफ अली जरदारी के तोहफे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की सदर मुमलिकत को सालगिरह की मुबारकबाद। और सऊदी अरब में उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद बोनीर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन का काफिला हादिसे का शिकार, 7 अफराद मौके पर जाम भाग, 6 शदीद जख्मी। मरने वालों में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा सऊदी अरब में ही आज रात अदा की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा चीन में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के आज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर हॉन जिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अलग अलग मुलाकातें की। CPAC के तहत उभरते इलाकाई और आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इजहार। शराकत दारी बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीनी हुकाम की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेड क्वार्टर्स पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चीन से मुलाकात। सलामती और विफाकी ताउन पर दिफाई तबादला ख्याल। कहा पाक चीन दिफाई ताउन को वसी तोसी दी जाएगी। फील्ड मार्शल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से भी मिले। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सेहूनी पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। कहा सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त को मिटाने के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबे पर अमल पैरा है। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गज़ा में इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। फ़रीक़ैन ने सेहूनी जारहियत को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। अमरीकी सदर की हमास को भी धमकी। कहा हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। हमास की क़यादत गज़ा में जंग बंदी के लिए मुआहिदा नहीं करना चाहती बल्कि मरना चाहती है। अमरीकी वफ़द को मुशावरत के लिए दोहा से वापस बुला लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान का वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर को ख़त। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालिबा। लिखा बरतानिया 1980 से 2 रियासती हल की हिमायत करता आया है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन को तस्लीम करता बरतानवी मौक़िफ़ की हकीकत का रूप देगा। झील सैफुल मलूक के करीब क्लाउड बर्स्ट से कंडोरा नाले में तोक़यानी। झील रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 500 सयाह फंस गए। KP हुकूमत का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। तमाम अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। एबटाबाद के सयाहती मकामात ठंडियानी में लैंड स्लाइडिंग से पुल टूट गया। ज़मीनी राबता मुनक़ता। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। उधर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में सैलाबी रैली से तबाही। दर्जनों दुकानें, मसाजिद और सड़कें तबाह। शिगर के इलाके कायमाबाद, तसर में भी फसलें तबाह। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फिरोजपुर रोड, सेंट्रल पार्क, रायवन, सोयासल, कहनानो, गजुमता में बादल बरसे। रायवन की गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। उधर जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए शनाब में पानी की सतह बुलंद। मोजा रपड़ी में 15 घर और एक स्कूल दरियाबुर्द।
फसलें भी डूब गईं। मंशराबाद की गल्ला मंडी और इतराफ की सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा, इंतजामिया गायब। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे, तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पीडीएमए का 28 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट भी जारी। रावल डैम के स्पिलवेज आज फिर खोले जाएंगे। हुकूमत के सारे दावे नाकाम, सस्ती चीनी का हुसूल ख्वाब बन गया। पंजाब में चीनी डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। महंगाई कंट्रोल करने वाली पैरा फोर्स भी नाकाम। कराची में चीनी 185 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। महंगाई के सताए शहरियों ने चीनी की कीमतों पर इंतजामिया की क्लास ले ली। कहा दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं, कोई भी इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं। आधा किलो दी है 100 रुपए की, हुकूमत कुछ कहती है और दुकान वाले कुछ कहते हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। चीनी तो हर घर में इस्तेमाल होती है, रेट पता किया तो 250 रुपये से कम किलो चीनी नहीं है। महंगी भी है और कहाँ मिल रही है सस्ती, कोई चीज़ ही नहीं सस्ती। महंगाई की आग मजीद भड़क उठी। एक हफ्ते में शरह में 4.7% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस फी MMBTU 590 रुपए महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 19 रुपए तक का इजाफा। बिजली के यूनिट की कीमत 1 रुपया बढ़ गई। अंडे फी दर्जन 11 रुपए महंगे। दही, ताज़ा दूध, चावल, दाल मसूर, बीफ भी महंगा। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का 17वां यौम पैदाइश। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर तखरीब और तकसीम का खौफनाक बाब हमेशा के लिए बंद किया। जुर्म बेगुनाही में अजियत और असीरी को हंस कर बर्दाश्त किया। साजिश और इल्ज़ामात का सामना किया लेकिन मुखालिफिन से बदला नहीं लिया। सदारती इख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल करना, CPAC सूबाई खुद मुख्तारी, NFC 18वीं तरमीम, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आसिफ अली जरदारी के तोहफे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की सदर ममलकत को सालगिरह की मुबारकबाद। जब सैलाब आए, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दिया, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। 21 लाख घर, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। अवामी खिदमत में हमारा मुकाबला करना है तो करके दिखाओ, चाहे मोटरवे बना लो, लेकिन छत फराहम करने से बड़ी इबादत कोई नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 21 लाख घर मुफ्त बनाकर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के VN के मुताबिक घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी देंगे। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया लेकिन अमल ना हो सका। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतासरीन में घरों के मालिकाना हुकूक भी तकसीम किए। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे में कप्तान बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। 3 T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को शेड्यूल। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को खेले जाएंगे। कौमी टीम कल अमेरिका पहुंचेगी।